Good morning, students. Today we shall read the lesson number 4 from your books Moments in the Kingdom of Fools. The king and minister all were fools, and they passed such humorous comical decision on the people of his country, of his kingdom. They passed the order that they would have to work at night and they will have to sleep during the daytimes. And people ordered the decision for fear of death. And once in the kingdom of fools, a thief, entered a house of a merchant, and the wall of the merchant's house collapsed, and then the thief died. His brother went to the king and complained that his brother was killed by this merchant. Merchant was called in. Merchant said that the wall was weak and it was made by the bricklayer. Then bricklayer was summoned. Bricklayer defended himself, saying that he couldn't concentrate his work because of a lady who was going up and down that street with a jingling sound of anklet. The lady was dancing girls. The lady was called, and now she was an old lady. The old lady said that the goldsmith was the responsible for her going ups and down the streets. She went to the jewelry shop of a goldsmith and he made excuses, and he said that to come to his shop a little later, and he made many excuses. So she had to go ups and down during all the daytime, and ultimately the goldsmith was summoned. The goldsmith said that he was not truly responsible for killing that innocent thief. He had to complete the order of a rich merchant because a wedding was coming there at his own house. They couldn't wait anymore, so he had to make excuses, and because of his excuses, the old lady, who was now old lady, the dancing girls had to go ups and down the street with a jingling sound, and because of the merchant, he had to make excuses. It was not he who was responsible. In fact, it was merchant was truly responsible for that. Merchant was called. The merchant said that it was not he, it was his father, who is no more now, and he ordered the goldsmith for the jewelry, and he is no more. It was his father who was responsible for that, and he is no more. The foolish king ultimately decided that the merchant would be punished, and the final decision was taken that he would have to die. But because of the queer decision, a stake was ordered to be made, and the stake was not suitable for the merchant. The merchant was too weak to be hanged to the stake. So the king ordered his soldier to find a suitable man for this, and the soldier of the king went to the cities, and eventually they caught a man. It was none other than but the disciple who had become fat, and they found him suitable for the stake. So let's resume the topic from here. Till now we have read, what have I done wrong? Now when the soldier of the foolish king arrested the disciple, he said that what I have done wrong. He asked them what he had done wrong. I'm innocent. He said that he was innocent. I'm सन्यासी, कहा कि मैं सन्यासी हूँ. He cried और चिल्लाया. That may be true, ये सच है, but it's the royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake. अब ये रॉयल किंग का ऑर्डर है कि एक सूटेबल व्यक्ति को आप पकड़ के लाओ, अरेस्ट करो, और स्टेक के ऊपर जो सूटेबल हो. ये सच है कि आप इनोसेंट हो. सोल्जर्स ने ऐसा कहा. दे सेड एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन. अब जहाँ पे उसको हैंगिंग करना था, उसको फांसी देनी थी, वहाँ पे लेके आए. सोल्जर्स
इसको, जो ये डिसाइपल था इसको, जो खा खा के मोटा हो चुका था। ही रिमेंबर्ड हिज गुरुज वाइज वर्ड्स, अब वो अपने गुरु की वाइज वर्ड्स को याद करता है। दिस इज़ द सिटी ऑफ फूल्स, ये मूर्खों का राज्य है, देश है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, वो अब तुम्हारे साथ क्या करेंगे ये पता नहीं। गुरु ने ऐसा उसको कहा था, उसको ये वर्ड्स याद आते हैं। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, जब वो मृत्यु का इंतज़ार करता उसने अपने गुरु को प्रे की। आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेयर एवर ही वॉज, कि उसकी प्रार्थना सुने वो कहीं पर भी हो। द गुरु सा एवरीथिंग इन हिज विजन, अब गुरु ने अपने दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखा। ही हैड मैजिक पावर्स, उसके पास एक जादुई ताकत थी। ही कुड सी फार, ही कुड सी द फ्यूचर, ही कुड सी द प्रेजेंट एंड पास्ट, वो वर्तमान, भविष्य और पास्ट को देख सकता था अपनी दिव्य दृष्टि से, उसने देखा। और वो ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसाइपल, जो गुरु था एकदम से अपेयर हुआ अपने शिष्य को बचाने के लिए। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड, खाने के लालच में वो इस ट्रबल में, स्क्रैप ट्रबल, संकट में आ पड़ा। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. जो ही वो प्रकट हुआ, अपीयर हुआ गुरु, उसने अपने शिष्य को खूब डांटा और कान में धीरे से कुछ कहा। Then he went to the king and addressed him. वो राजा के पास गया, उसने कहा, गुरु राजा के पास गया, उसने कहा, क्या कहा? Oh wisest of the king, who is greater, the guru and the disciple? उसने पूछा, तुम महान राजा हो, बताओ गुरु महान होता है कि शिष्य, बड़ा कौन होता है? Of course the guru, no doubt about it. Why do you ask? निसंदेह गुरु होता है, आप मेरे से ये क्यों पूछ रहे हैं? Then put me to the stake first, put my disciple to death after me. तो इसलिए मुझे, क्योंकि मैं बड़ा हूँ, गुरु बड़ा होता है, इसलिए मुझे मृत्युदंड पहले दे, मेरे शिष्य को बाद में, ऐसा गुरु ने कहा मूर्ख राजा को, द फुलिश किंग को। When the disciple heard this, जब शिष्य ने ऐसा सुना, he understood and began to clamor, वो चिल्लाने लगा ऐसा सुनकर, me first, मुझे पहले। You brought me here first, आप मुझे पहले यहाँ लेके आए थे। Put me to death first, not him, मुझे पहले मृत्युदंड दो, न कि मेरे गुरु को, क्योंकि आप मुझे पहले यहाँ पे लेके आए। You have arrested me first, so hang me to death first, ऐसा शिष्य ने कहा। The guru and the disciple now got into a fight about who should go first, अब दोनों लड़ने लगे कि पहले कौन मरे। The king was puzzled by दिस बिहेवियर, अब राजा कंफ्यूज हुआ इस प्रकार के जो बिहेवियर था। ही आस्क्ड द गुरु, वाई डू यू वांट टू डाई, अब फुलिश किंग ने गुरु से कहा कि आप क्यों मरना चाहते हैं? वी चूज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक, हमने उसका चुनाव किया, अरेस्ट किया, क्योंकि वो स्टेक के लिए सूटेबल पर्सन है, फैट है। यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चन, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु, गुरु ने अब ऐसा कहा कि आप ऐसे प्रश्न मत करो, आप मुझे फांसी की सज़ा दे दो। वाई देयर इज सम मिस्ट्री हियर, अब उसने कहा कि यहाँ कोई रहस्य है, क्यों तुम इसे सजा दें? एज ए वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, तुम बुद्धिमान हो, तुम मूर्ख राजा ने कहा मुझे समझाओ क्यों मरना चाहते हो। विल यू प्रोमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू, क्या आप मुझे प्रॉमिस करते हैं अगर मैंने आपको बता दिया तो, कि मुझे आप पहले डेथ पेनल्टी दोगे? आस्क द गुरु ने ऐसा राजा से पूछा। द किंग गिव हिम हिज सोलेम वर्ड, अब राजा ने उसको प्रॉमिस किया गुरु को। द गुरु टुक हिम असाइड, गुरु राजा को अलग से ले गया। आउट ऑफ द सर्वेंट ईयर शॉट, जो सर्वेंट थे उनके उन तक ताकि आवाज़ ना पहुँचे, उनसे दूर ले गया गुरु फुलिश किंग को। एंड विस्पर टू हिम, उसको कानों में कुछ कहा धीरे से। डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ, क्या आपको पता हम अब क्यों मरना चाहते हैं? द टू ऑफ अस, हम दोनों, वी हैव बीन all over the world but we have never found a city like this or king like you, हम दुनिया जहान में घूमे हैं, पूरी वर्ल्ड में घूमे हैं, लेकिन ऐसा शहर और ऐसा राजा हमने कभी नहीं देखा है। उन्होंने इसको फॉल्सली एडमायर किया, उसको फ्लैटर किया। दैट स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस, और ये जो फांसी का फंदा, ये भगवान के जो आदेश है, वैसा जो गॉड ऑफ जस्टिस, न्याय का जो देवता होता है, उसका आदेश है।
इट्स न्यू, ये नया है। इट हैज़ नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, और इसके ऊपर कोई क्रिमिनल आज तक हैंग नहीं हुआ, फांसी नहीं दिया गया है। Whoever dies on it first will reborn as the king of this country, जो व्यक्ति पहले इसके ऊपर मरेगा अगले जन्म में वो व्यक्ति राजा बनेगा इस देश का। And whoever goes next will be the future minister of this country, और जो सेकंड मरेगा वो इस राज्य का मिनिस्टर बनेगा, ऐसा गुरु ने पुलिस किंग को कहा। वी आर सिक ऑफ आवर एस्टिक लाइफ, हम सन्यासी जीवन से तंग आ चुके हैं। इट वुड बी नाइस टू एंजॉय अवर सेल्फ एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर वाइल, कुछ क्षण के लिए हम दोनों एक राजा और एक मंत्री का जीवन यापन करके इस खुशी के साथ रहना चाहते हैं। नाउ कीप योर वर्ड, अब अपने जो आपने प्रॉमिस किया उसको पूरा करो। माई लॉर्ड पुट अस टू डेथ, हमें मृत्युदंड दो। मी फर्स्ट रिमेंबर, याद रखना मुझे पहले। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट, अब राजा सोचने लगा। ही डिडंट वॉन्ट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स, अब वो अपना राज्य किसी व्यक्ति को ऐसे नहीं देना चाहता था। इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, अगले जन्म में भी। ही नीडेड टाइम, उसको समय की जरूरत थी। सो ही ऑर्डर द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे, अब उसने ऐसा जो मृत्युदंड का जो डिसीजन था वो पोस्टपोन कर दिया, स्थगित कर दिया नेक्स्ट डे के लिए। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, अपने मिनिस्टर के साथ चुपचाप बात की। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। अब पुलिस किंग ने अपने मिनिस्टर को कहा कि ये इट्स नॉट गुड ऑन आवर पार्ट टू गिव ओवर आवर किंगडम टू द अदर पर्सन इन द नेक्स्ट लाइफ, कि अगले जीवन में हम किसी को अपना राज्य दे दें, ये ठीक नहीं है। लेट्स गो ऑन द स्ट्रीक आवर सेल्व्स एंड वी विल बी बोर्न एज द किंग एंड द मिनिस्टर अगेन, आओ हम दोनों फांसी टूट जाएं और मैं राजा और आप मिनिस्टर बन जाएं अगले जन्म में भी, ऐसा पुलिस किंग ने कहा। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, सन्यासी जो लोग होते हैं वो झूठ कभी नहीं बोलते। ही सेड, उसने कहा। द मिनिस्टर एग्रीड, और मिनिस्टर भी एग्री हो गया। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर, अब उसने जो फांसी का फंदा जो जल्लाद होता है उससे कहा, वी विल सेंड द क्रिमिनल टुनाइट, अब आज रात हम क्रिमिनल भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, पहला व्यक्ति जो है तुम्हारे पास उसको पहले फर्स्ट उसको हैंग करना, फांसी चढ़ाना। देन डू द सेम टू द सेकंड मैन, और ऐसा ही दूसरे व्यक्ति के साथ करना। दोज आर माई ऑर्डर, ये मेरे आदेश हैं। डोंट मेक एनी मिस्टेक, और कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, उस रात राजा और मिनिस्टर चुपके से वहाँ पे आते हैं। रिलीज द गुरु एंड द डिसाइपल, गुरु शिष्य को रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। डिस्गाइज देमसेल्फ एज द टू, और अपना भेष धारण कर लेते हैं दोनों का, गुरु और शिष्य का। एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड विद लॉयल सर्वेंट, और जो वफादार नौकर थे उनके साथ पहले वो सेटिंग कर लेते हैं। वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, वो स्टेक पे जाते हैं और प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, उनको फांसी पे लटका दिया जाता है। व्हेन द बॉडीज वर टेकन डाउन टू बी थ्रोन टू क्रोज एंड वल्चर्स, द पीपल पैनिक, जब वो मरने के बाद उनके डेड बॉडी को कौवों को और वल्चर गिद्ध वगैरह को खाने के लिए नीचे उतारते हैं तो पीपल पैनिक्ड, वो वहाँ पे जो लोग होते हैं वहाँ के बड़े दुखी होते हैं। दे सॉ बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग्स एंड द मिनिस्टर, उनके सामने राजा का मृत शरीर था और मिनिस्टर का। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन, अब सारे लोग कन्फ्यूज हो गए, पजल्ड हो गए कि क्या करें, व्हाट टू डू। ऑल नाइट दे मोर्न्ड एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, पूरी रात बेचारे रोते रहे, विलाप किया और राज्य के भविष्य के बारे में उन्होंने सोचा। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड डिसाइपल एंड caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed। अब कुछ लोगों का ध्यान गुरु और शिष्य के ऊपर गया जो चुपचाप अननोटिस्ड उस तैयारी कर रहे थे उस राज्य से बाहर जाने के, निकलने की। We people need a king and a minister, said someone. Other agreed। अब उन लोगों ने कहा कि हमें एक राजा की और मिनिस्टर की ज़रूरत है। बाकी लोग भी इस बात पे एग्री हो गए, उन्होंने यस कहा। They begged the guru and the disciple to be their king and their minister। उन्होंने गुरु शिष्य से रिक्वेस्ट की कि आप लोग हमारे राजा बन जाओ और जो शिष्य कहा कि आप मिनिस्टर बन जाओ। It didn't take many arguments to persuade
द डिसाइपल, अब शिष्य को मनाने के लिए कोई ज़्यादा उनको आर्गूमेंट नहीं करने पड़े, बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु, लेकिन गुरु को मनाने के लिए थोड़ा सा और टाइम उनको लेना लगा। दे फाइनली एग्री टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश, अंत में उन्होंने फुलिश जो किंगडम था उसको रूल करने का, उसको शासन करने का यस कहा, उन्होंने एग्रीमेंट किया, कंसेंट दी अपने किंगडम ऑफ फुलिश किंग एंड सिली मिनिस्टर ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉ। अब जो मूर्ख राजा मरा और मूर्ख मिनिस्टर मरा, उसकी जगह पे जो डिसाइपल और गुरु ने एक्सेप्ट किया वहाँ पे रूल करने का, तो इस कंडीशन पे किया कि दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉ, वो पुराने जो कानून है जो कि अकॉर्डिंग टू गुरु इट वाज नॉट गुड टू वर्क एट नाइट एंड स्लिप ड्यूरिंग द डे, इसको हम चेंज करने के लिए उन्होंने इनको कंडीशन रखी, शेख शर्त रखे। फ्रॉम देन ऑन, उससे आगे नाइट वुड अगेन बी नाइट, रातें होंगी, एंड डे वुड अगेन बी डे, दिन होंगे, मीन्स जो पीपल ऑफ दैट किंगडम would have to work during the day and they will have to sleep during the night and you could get nothing for a dudu, और आपको एक डुडू यानी 1 रुपये में कुछ नहीं मिलेगा, ये कंडीशन की। It became like an other places, ये बाकी जो राज्य हैं, शासन है, उनमें जो सिस्टम है वही उन्होंने अप्लाई करने के लिए उन्होंने कंडीशन रखी। एंड द पीपल ऑफ दैट कंट्री, द पीपल of that country accepted the condition and Guru became the king and disciple became the minister and all the previous rules were changed. So student, I hope you enjoyed well and you learned the lesson that every decision should be taken wisely. Success depends on your decision, how wisely decision you take in life. Your success entirely depend on how you decide, how you take your decision. If you take your decision wisely, deliberately, you must succeed in life. And the rest, the people who take decision in life foolishly, they lose their life as that of the kings and minister. The kings and minister of foolish, they took the decision of their death themselves because of their foolishness. So you got my point. Always be a considerable person in life to succeed in life and to enjoy life completely and to live a positive life. You must take a wise decision in order to succeed in life. So student, I hope you enjoyed well. Keep practicing, keep learning. May God bless you all. Have a great day.